जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस् अजस्य कर्तुरात्मना तिरन्निर्शेषु यादः सु तद् अत्यंत विडम्बनम्. Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth though you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Yeah. The transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. The Lord is the all prevailing super soul of all existence, and yet he appears in the form of a boar amongst the animal, in the form of a human being as Ram, Krishna, etc., in the form of Rishi like Narayan, and in the form of an aquatic like a fish. Yes, it is said that he is unborn and he has nothing to do. In the Shruti mantra, it is said that Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than him. He has manifold energies, and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength, and activity. All these statements prove without any question that the Lord's activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. And because He is inconceivably powerful, everything is possible in Him. Therefore, no one can calculate Him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the Supreme Lord in all circumstances. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Again, amazing purport by Srila Prabhupada, as always. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? पहले तो कुंती महारानी बोल रही हैं कि although you work and you are inactive. हम जनरली बोलते हैं कि कृष्णा is आत्माराम. He has nothing to do with material energy. He has nothing to do with the material world. उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. He is आत्माराम. आत्माराम means जो अपने आप में खुश रहे, right? And at the same time, he is working so much. वो भूलोक पे आ रहे हैं. वो पांडवों के साथ महाभारत में उनके रथी बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं. उनको उनको कौरवों से बचा रहे हैं, उनका संदेश लेकर जा रहे हैं, संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हैं. वहां पे कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ही इज डूइंग सो मच वर्क. Right. So Kunti Maharani is saying it's so bewildering. You have nothing to do, but still you are coming into this world and you are doing work, right? And you are born and you are unborn, right? ये हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है कि although Krishna is unborn, right? Because how can he born जब क्योंकि इस जब ये यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स किन चीजों से बना हुआ है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि. अब ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? पहले ये यूनिवर्स बना, इजंट इट? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से. उसके बाद हम बने. हम हमारे अंदर भी सेम एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि. नाउ अगर कृष्णा, तो जिसने यूनिवर्स बनाया, ऑब्वियसली ही शुड बी देयर फर्स्ट. पहले वो आया तभी उसने यूनिवर्स बनाया ना. तब उसके बाद हम बने. तो how can Krishna again come into this material world when he himself is the creator, isn't it? So this is again bewildering because he did not take birth because he is Adi Purush, and at the same time he came and he was born to Yashoda and not Yashoda, sorry, Devaki and Vasudev. तो अब अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वसुदेव एंड देवकी, इट वाज नॉट नॉट अ नॉर्मल, जैसे हम पैदा होते हैं ऐसे नहीं पैदा हुए थे.
So Krishna entered into the heart of Vasudev, and from his heart he entered into the heart of Devaki, right? So it was not a normal birth. It was extraordinary. So people don't understand that, and that is why this is bewildering, right? And more bewildering, अत्यंत विडंबनम, अत्यंत विडंबनम क्या है? ये तो चलो छोड़ो, ह्यूमन में आए या कृष्णा एज अ कृष्णा हिमसेल्फ आए, when you descend yourself among animals, जब आप एनिमल बन के आ रहे हो, that is even more bewildering. मतलब सोचो, जो सबसे डिस्गस्टिंग एनिमल है पिग, राइट, अब उसके वो बोर, वाइल्ड बोर, वराह अवतार में आप आए हो, राइट? वराह अवतार मतलब सबसे डिस्गस्टिंग एनिमल है, ठीक है, उस एनिमल के फॉर्म में आप आए हो, राइट? और पूरा उसका थर्ड कैंटो में हम पढ़ेंगे, उसका बहुत ही अमेजिंग पास टाइम है। अब देखो, हम सबको पता है कि वो अर्थ हिरण्याक्ष ने अर्थ को नीचे पानी में डुबो दिया था। तो उसके बाद उन्होंने उनको बड़ा अवतार लिया और उन्होंने अपनी टस्क पे उनको उठाया और उठा के वापस प्लेस कर दिया पानी के ऊपर। एंड देन ही डिड अ ग्लांस, उन्होंने अपनी ग्लांस की, जिससे वो सारी ग्रेविटेशनल पुल आ गया उसमें, अर्थ में, राइट, ना कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहे। सो दिस थिंग, अब बोलोगे कि अच्छा, ये इतना, इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, बड़ा अवतार, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली स्मेलिंग। क्योंकि सुअर का काम क्या होता है, वो स्मेल करता है, स्मेल कर करके ढूंढता है। तो वरा एक्चुअली, जब ये वरा अवतार में आए तो उन्होंने ही स्मेल्ड के अर्थ कहाँ पर चली गई, पानी में डूबी हुई थी ना, तो उन्होंने ढूंढने के लिए ही एक्चुअली एक्टेड लाइक अ बोर, एंड ही फाउंड आउट एंड ही टुक इट आउट। अदरवाइज क्या होता, अच्छा कृष्णा को बोलते हैं, हाँ कृष्णा, अच्छा ये बड़ी अर्थ, ये उठा के यहाँ रख दी, ओके डन। तो उसमें हमारे लिए कथा करने के लिए कुछ भी ना होता। सो कृष्ण, ताकि हम लोग डिवोटीज कथा कर सकें और उसका आनंद ले सकें, इसलिए ही परफॉर्म सच काइंड ऑफ पास टाइम्स, राइट? अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं होता हमारे पास डिस्कस करने के लिए। आज हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, हाँ ठीक है, उन्होंने, ब्रह्मा ने बोला, ओके ठीक है, ये पढ़िए अर्थ, ये लो यहाँ रख दिया, ओके चलो स्टार्ट क्रिएशन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और उसके अंदर भी इतना अमेजिंग, विल डिस्कस इन डिटेल एनीवेज इन थर्ड कैंटो, बट वहां पर मैं अभी खोल के मैंने रखा ही था, जब, क्योंकि थर्ड कैंटो भी हमने जस्ट फिनिश किया है, इसमें आई वांटेड टू गो थ्रू दिस वर्स। क्या बोल रहे हैं, ही वॉज पर्सनली द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु एंड वॉज देयरफॉर ट्रांसेंडेंटल, yet because he had the body of a hog, searched after the earth by smell. His tusks were fearful, and he glanced over the devotee Brahmanas engaged in offering prayers. Thus he entered the water. वो पानी के अंदर गए ढूंढने के लिए, by smell, right? We should always remember that although the body of hog is material, the hog form of the Lord was not materially contaminated. So if someone tomorrow comes and asks us कि यार तुम्हारे भगवान तो क्या है, सुअर हैं, ठीक है, so we should be able to tell them कि he was not a pig, he was not a hog, but क्योंकि जनरली प्रभुपाद के purports में, या हम भी जनरली, this hog and dog, this is very common word, right, which we use, right, कि we are leading a life of a hog and a dog, but अब वो कोई आके बोले आपको कि आपके जो सो कॉल्ड भगवान है वो भी तो ऐसी हॉग फॉर्म में थे, राइट, देन वी शुड बी एबल टू टेल हिम दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी हॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही पिक्ड अप अर्थ ऑन हिज टस्क्स, राइट? सेकेंडली, it is not possible for an earthly hawk to assume a gigantic form spreading throughout the sky, beginning from Satyaloka. Obviously, उसको अर्थ से बड़ा होना पड़ेगा, then only you can pick it up, right? It was not a ordinary feat. And again, वो कहाँ से निकले? वो ब्रह्मा जी के nostrils में से निकले। Again, very very bewildering, right? How can it happen? So this is the point which Kunti Maharani is saying here. इट इज वेरी बिविल्डरिंग कि आप एनिमल फॉर्म में आ रहे हो, ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल्स में से निकल रहे हो, फिर अर्थ को उठा रहे हो, राइट? तो इसलिए तो लोग, ये भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बोलते थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लीला पाठ पे आओ, यू शुड ऑलरेडी हैव अ बैकिंग ऑफ तत्व, यू शुड नो whom वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे थर्ड कैंटो पे, ये लीला, ये देखेंगे, ये कहेंगे कि हॉग बने हुए हैं, बड़ा अवतार में आए हुए हैं कृष्णा, सो विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग होगी,
पर जब हमें तत्व का ज्ञान होगा ऑलरेडी, फर्स्ट वी नो कि हु इज कृष्णा, राइट, देन वी विल बी एबल टू रिलेट कि ओके ही इज डूइंग इट जस्ट फॉर फॉर अट्रैक्टिंग अस, फॉर अट्रैक्टिंग डिवोटीज, राइट। जैसे मैंने कहा कि अगर वो ऐसे उठा के रख देते तो हम डिस्कस नहीं कर रहे होते इन सब चीजों को। तो ही relishes that, and we and devotees also relish discussing that his pastimes. So his body is always transcendental in all circumstances. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो हॉग की बॉडी में आए हैं तो वो ट्रांसीडेंटल नहीं है, इट इज ट्रांसीडेंटल। एंड एक्चुअली और इसमें डिटेल में था कि जब वो बाहर निकले करने के बाद, तो जैसे जनरली वो एनिमल्स करते हैं ना, ऐसे ऐसे उन्होंने अपना पानी लग गया था तो किया, तो सबने सभी डेमी गॉड्स ने वो लिया, जैसे हम वो क्या बोलते हैं उसको, जब आरती के बाद ऊपर हम पानी देते हैं ना, तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट, so pure it was. So therefore the assumption of the form of the boar is only a pastime. His body is all Vedas and transcendental. But since he has assumed the form of a boar, he began to search out earth by smelling just like a fog. The Lord can perfectly play the part of any living entity. That's the beauty of Krishna, right? He can play part of any living entity, and that we'll see in this verse. अभी जो कुंती महारानी बोल रही है. The gigantic feature of the boar was certainly very fearful for all non-devotees, but to the pure devotees of the Lord, he was not fearful at all. On the contrary, he was so pleasingly glancing upon his devotees that all of them felt transcendental happiness. All right. So coming back, not only animals, ठीक है, ये तो एनिमल्स में हो गया। फिर एक मत्स्य अवतार हुआ था उनका, राइट। तो मत्स्य अवतार में क्या हुआ था कि कौन से ऋषि थे वो, हाँ, सत्यव्रत। सत्यव्रत किंग थे। वो नदी के पास अपनी वो पूजा कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो आए, उनको एक ना मछली मछली दिखी। तो उन्होंने कहा, मछली बोल रही है, मछली बोलती है कि मेरे को यहाँ पे और बड़े एनिमल से डर है, तो आप मुझे अपने घर ले जाओ। तो वो उसको अपने कमंडल में डाल के अपने घर ले आते हैं। तो जैसे ही घर लाते हैं वो और बड़ी हो जाती है, बोलती है कि मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, तो मुझे और बड़े में लेके जाओ। तो वो वहाँ तालाब में रख देते हैं, फिर और बड़ी हो जाती है वो, तो बोलते हैं मुझे नदी में छोड़ाओ। फिर नदी में छोड़ते हैं, वो बोलती है और बड़ी, फिर मुझे समुद्र में छोड़ाओ। इट गोज ऑन लाइक दैट। द पॉइंट हियर इज कि हमें कोई मछली ऐसी मिलेगी जो बोलती हो, राइट। और वो राजा, सत्यव्रत राजा, उनसे वो आध्यात्मिक वो नॉलेज ले रहे थे। तो जो हम मछली से बात कर रहे हैं और उनसे वो आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, इट्स बिविल्डरिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देन अगेन अब आती है मैन। मैन में सबसे ज्यादा बिविल्डरिंग कौन सा था? राम भगवान जी का, राइट। राम भगवान जब आए तो सीता किडनैप हो गई। जब सीता किडनैप हो गए, ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो लग ही नहीं रहा था और कि वो भगवान है। पेड़ों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीते कहाँ गई, कहाँ गई एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे शिव जी थे ऊपर। तो शिव जी अम, शिव जी राम भगवान के भक्त हैं। तो सीता माता ने पूछा कि आप ये आपकी भगवान है, आप इनको भगवान बोलते हो, ये भगवान कहाँ है? ये तो अपनी वाइफ उनकी किडनैप हुई और ये तो ऐसे रो रहे हैं, ये भगवान कैसे हुए? तो उस टाइम पे सती सती थी वो, तो पार्वती माता नहीं थी। तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तो आप जाके खुद इनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो सती माता जाती हैं, बोलती हैं, और वो सीता का भेष धारण करके जाती हैं। तो वो जाती है उनके पास और बोलती हैं कि आप रो क्यों रहे हो, लो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो वो बोलते हैं माते, आप अकेले कहाँ घूम रहे हो, शिव जी कहाँ हैं आपके? वहीं पर पानी पानी हो जाती है कि ये क्या है। तो द पॉइंट हियर इज कि जब स्वयं सती, राइट, जो शिव जी की अर्धांगिनी है, वो बिविल्डर हो जाती हैं, ठीक है। और मेन लाइक पास टाइम में, इट्स जस्ट मेन, राइट। मेन तो कॉमन, आई मीन यू शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड, आई मीन वन कैन से, राइट, बट शी गॉट बिविल्डर्ड। सो हमारी तो क्या औकात है उनके सामने। फिर नर नारायण ऋषि, स्टेजेस पे आते हैं। नर नारायण ऋषि अगेन वेरी पावरफुल ऋषि, और
उनका पास टाइम था कि वो तपस्या कर रहे थे अगेन, बिकॉज दे वर सेजेस। तो एज यूजुअल इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई। उसको लगता है कि जो भी तपस्या करता है वो स्वर्ग पे आना चाहता है, और उसको अपनी सीट खतरे में लगती है। तो उसने क्या किया, अप्सराएं भेज दी। कामदेव के साथ उसने मेनका भेज दी कि जाओ, जाके इनकी तपस्या भंग करो, एज नॉर्मल। उसका बिजनेस एज यूजुअल था उसका ये, राइट। तो वो जाता है। तो कामदेव को पता होता है, कामदेव बोलता है कि यार तुमने मुझे पहले भेजा था शिव जी के पास, और मेरा उन्होंने भस्म कर दिया था मेरे को, तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वो बोल रहे हैं देखो भाई, तुम्हारी जॉब है, तुम्हें करनी है कि मैं किसी और को अपॉइंट करूँ। वो बोलते हैं कि ठीक है, ओके, आई विल गो। तो ही गोज, एंड देन ही स्टार्ट डांसिंग एंड ऑल दोज। वो स्प्रिंग ले आए, सब कुछ अच्छा सा माहौल सा बना दिया वहां पर। और वो डर भी रहा था कामदेव और मेनका, बट कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी और अप्सराएं ले आया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली नर नारायण ऋषि ने, उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने कहा इट्स ओके। तो उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति से उन्होंने एक और अप्सरा बनाई, उर्वशी। उन्होंने, और उस अप्सरा को देखकर बाकी सब बेहोश हो गए, वो इतनी सुंदर थी। तो बोलते हैं ये ले जाओ मेरी तरफ से और इंद्र को गिफ्ट कर देना। सो दैट वाज द पावर ऑफ नर नारायण ऋषि, राइट। अगेन विविल्डरिंग। फिर एक्वेटिक्स में एक और आता है कूर्मा अवतार। अब कूर्मा अवतार में क्या हुआ था, वो समुद्र मंथन में उन्होंने एज अ क्या यूज किया था उनको, एज अ बेस फॉर मंदराचल पर्वत। तो उन्होंने जब उसको रखा उसके ऊपर, फिर उन्होंने वो समुद्र मंथन किया। तो उसके बाद उसमें डिटेल में भागवतम में मेंशन है कि इट वाज लाइक स्क्रैचिंग द बैक। तो भगवान को मजा आ रहा था कि हाँ कोई मेरी बैक स्क्रैच कर रहा है, और उनको नींद आ गई, राइट। तो इसमें आचार्य बोलते हैं कि कोई अगर तुम्हें बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसके पीठ पे लाके वो रखो बड़ा सा, और उसको उसके बाद उसको हिलाओ, तो फिर उसे पूछो कि वो भगवान है क्या, राइट। सो ओनली लॉर्ड कैन डू दैट। सो दीज आर नॉट द नॉर्मल animals or aquatics, right? So these are very, very powerful aquatics. So if someone says it is just for a faith, for हमारा faith strong करने वाला वर्ष है बेसिकली, ये हमें पता होना चाहिए, हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए, if so that if someone comes and challenges us, we should be able to answer. Okay, these were not normal animals and normal sages or men or aquatics. These were extraordinary, very, very powerful, राइट। और वो बोलते हैं कि कूर्मा अवतार में जो, वो जब वो सांस ले रहे थे उस टाइम पे, तो उसकी जो वेव्स हैं वो अभी तक समुद्र में आती हैं। तो वो जो वेव्स हैं, दीज आर द ब्रेथ्स विच आर टेकन बाय कूर्मा अवतार, राइट। और और नेक्स्ट इज इसमें, हाँ, देवता। देवता के उसमें भी आया वो, तो देवता में कौन सा था, वामन देव का अवतार। अगेन लक्ष्मीपति, जो खुद लक्ष्मीपति हैं, वो बैगर बन के आपके सामने आएंगे, और बैगर में भी क्या बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स दे दो। इजंट इट विविल्डरिंग अगेन। सो बट, और ऊपर से आप खुद सोचो कि अंबानी आए आपके पास और वो बोले कि मुझे 5 रुपए दे दो प्लीज, मुझे 5 रुपए चाहिए, तो कैसा लगेगा आपको? तो दिस इज वेरी, वेरी विविल्डरिंग पास टाइम्स। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आई वॉज एन इम्पर्सनलिस्ट। सुखदेव गोस्वामी वॉज एन इम्पर्सनलिस्ट, बट आत्माराम इम्पर्सनलिस्ट, ही हैज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो बाहर भी नहीं आ रहे थे अपनी माँ के गर्भ से, राइट। बट कृष्ण कथा सुनने, उनको कृष्ण कथा सुनाई और इतनी रुचि हो गई उनकी कृष्ण कथा में, दैट ही बिकेम अ डिवोटी, और पूरी भागवतम बोल डाली उन्होंने। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण कथा, दैट इज वाई कृष्णा इज सो सो अट्रैक्टिव, that it attracts even an impersonalist, right? तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, राइट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि these are the कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शंस आया था ना, anyhow, so these are the contradictions, so how we can resolve these contradictions, कि वो पैदा हुए या नहीं हुए, उन्होंने काम किया या नहीं किया। So we should understand that Krishna has no material body and no material qualities, nirguna,
Krishna is called Nirgun, right? Which means it doesn't mean that he doesn't have any gun. It means that he doesn't have any material guna. Material guna कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. Krishna is beyond those guna and Krishna is beyond matter. He does not have a material body. He has a transcendental body, right? As we discussed earlier. So अगर दो चीजें, अब जैसे कृष्णा को बोला गया है अनबॉर्न, भी बोला गया है कई जगह स्क्रिप्चर्स में, और कई जगह बोला गया ही वॉज बॉर्न, राइट? तो जब ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं स्क्रिप्चर्स में, सो हाउ वी रिजॉल्व देम? सो वी रिजॉल्व देम बाय सेइंग दैट बोथ आर करेक्ट. Krishna is omnipresent, that is also correct. Krishna stays in Vrindavan, that is also correct. Both are correct. It doesn't mean कि कृष्णा omnipresent है तो वो ब्रह्मन लेयर में ही होंगे, कि वो impersonalist ही होंगे. No, वो भी तो लिखा है कि how can you deny the fact that Krishna is in Vrindavan eternally doing pastimes with gopis and all? You can't deny that. So Krishna is both, right? So अब होता क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं, दे मेक those pastimes even sweeter for devotees. Although for non-devotees it doesn't matter, right? वो तो कहीं पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल लें, राइट? फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्शन है कृष्णा में, कृष्णा के पास टाइम में, कृष्ण कथा में देर आर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट? कर्ण को धोखे से मार दिया, पॉलिटिशियन, ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन बुलाते थे उनको, राइट? बोलो, अब जिसको नहीं पसंद बोलेगा कि यार मुझे तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन वाला भगवान नहीं चाहिए. ओके, यू टेक लॉर्ड राम. लॉर्ड राम इज हैज नो कॉन्ट्राडिक्शन. बट जिसने ढूंढनी है वो लॉर्ड राम में भी ढूंढेगा, वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे उसमें भी वो पसंद नहीं आया कि उसने एंड में सीता माता को छोड़ दिया. तो फिर हम बोलेंगे कि चलो अच्छा, फिर कृष्णा को ले लो. कृष्णा ने तो जो 16,000 रानियां थी, उनको उनको एक्सेप्ट किया, उनको प्रोटेक्ट किया उससे, नरकासुर से. वो भी नहीं, राइट? सो इट डजंट मैटर फॉर नॉन डिवोटीज बिकॉज दे दे विल फाइंड फॉल्ट्स and they will remain bewildered. Whereas a devotee को कोई फर्क नहीं पड़ता उन contradiction से, because he understands the tattva. He understands that whatever Krishna is doing is, Krishna can do anything, right? Basically, वो है ना वो स्टोरी, वो नारद मुनि और नारायण की. तो नारद मुनि पूछते हैं कि इस कॉबलर और ब्राह्मण में से कौन जाएगा, कौन आपके पास आएगा? तो कृष्ण बोलते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं कि तो ये कॉबलर आएगा मेरे पास पहले. क्यों? क्यों? वो कहते जाके खुद यू फिगर आउट के, उनको जाके दोनों को बोलो कि भगवान मेरे क्या कर रहे थे. मेरे भगवान, वो बोलेंगे कि एक सुई की उसमें छेद में से हाथी को निकाल रहे थे. तो उन्होंने जाके बोला ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण बोला ओ दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता. और वही चीज उन्होंने कॉबलर को जाके बोली, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू दैट, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट इट. सो वेदर देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस और नॉट, devotees always want to glorify Krishna. They always want to have Krishna Katha. That is the main key takeaway from this verse, right? Simple faith is needed. Whether it is conceivable or not conceivable, it doesn't matter, right? Although it matters to an extent. अब जब हम, एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा किसी ने, प्रभुपाद ने बोला कि यू कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा. तो उनके डिसाइपल्स ने बोला कि प्रभुपाद फिर आप इतनी बुक्स क्यों लिख रहे हो कृष्णा पे? तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ टू टेल यू, टू टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम, राइट? तो इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, राइट? There are some things which we can straight away understand, right? But there are some things which we cannot understand right now, but we will understand over a period of time. But there will be a lot of other things which you will never be able to understand, right? Because अगर हमने अपनी बुद्धि से कृष्णा को समझ लिया, तो क्या हो गया, हमारी बुद्धि विल बी हायर देन कृष्णा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? और बोलते हैं कि कृष्णा खुद को भी नहीं समझते हैं. ही डजंट इवन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, राइट? बिकॉज एवरी डे उनकी और चीजें, उनकी और चीजें निकल के आती हैं जो उनको खुद को भी नहीं पता. बोलते हैं अनंत शेष अपने अनंत मुखों से हजारों करोड़ों सालों से कृष्णा की ग्लोरिफिकेशंस कर रहा है,
और वो अभी खत्म नहीं हुई। तो दिस इज हु कृष्णा इज, राइट। तो सेम चीज अगर हम देखें कि हम अपने अगर हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल लें, तो जब हम शादी से पहले हमें कुछ चीजें पता होती हैं, है ना, दैट्स व्हाई वी मैरी अवर स्पाउस, कि उनकी वी अंडरस्टैंड देम राइट टू एन एक्सटेंट। बट शादी के बाद हमें पता चलता है बहुत सारी और चीजों का, इजंट इट? तो और बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अभी तक नहीं समझ में आ रही होती अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस की, इजंट इट? So obviously there were some things before marriage which resonate, and you immediately you can see that and you get married. But you you tend to understand more once you get married, that once you marry that person. So yeah, but एक डिवोटी का जो फोकस होता है दैट इज नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। हमें कोई वो नॉलेज गेन करके हमें कोई वो नहीं बनना है कि बहुत जी हम तो स्कॉलर बन गए। द पॉइंट हियर इज टू डेवलप लव। The point of why we are trying to understand Krishna, because we love him. We want to understand him because we love him, right? We want to know more about the person whom we love. So that is the point. Otherwise there is no other agenda behind that. Or love, how we can express love by doing pure devotional service. Right now, we are practicing, we are doing sadhana bhakti. So sadhana bhakti helps us in reaching वो जो है ना stages. So finally we'll reach to a stage which is love, which is the end game. एक बार love develop हो गया, then we are not gonna come back into this world, right? It may not resolve the contradictions, but these contradictions will not disturb us. If we keep on practicing it, तो अगर हम भक्ति कर रहे होंगे तो ये जो contradictions हैं ये हमें disturb नहीं करेंगी, because हमें पता होगा कि who Krishna is, और वो अंदर से भी हम प्यूरिफाई हुए होंगे। प्रेमांजन ज्वलित भक्ति विलोचनेन, राइट? तो हमारी we put the ointment of love in our eyes to understand, to see Krishna. That is the point here, right? So same thing here. So Kunti Maharani is not getting disturbed कि यार ये तो कृष्णा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम एनिमल में बन जाते हो, तुम ये हो जाते हो, तुम सिटीज में ये करते हो, तुम कभी बॉर्न होते हो नहीं होते हो, तो मैं तुम्हारी अब से भक्ति नहीं कर रही। नो 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 नो, शी इज नॉट सेइंग दैट, शी इज सेइंग इन अमेजमेंट, कृष्णा यू आर सो अमेजिंग, यू बिल्डर एवरीवन, एंड आई लव यू काइंड ऑफ थिंग, राइट? नाउ he is giving an example of her own bewilderment in the next verse. So here, too, generally, he is saying that among animal men sages, you are. This is all bewildering, right? You work, you don't work. But here she is saying, okay, what specifically bewilders her? Text number 31. गोप्ये अदा त्वयि कृताक्षिदमत्तावद्येतादृशाश्रु कलिनञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निन्याभयभावनास्थित्य सा मां विमोहयति धीरपि My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Can I read, Prabhuji? Yes, please. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while discharging such a devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotee more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection without anything of reverential admiration.
reverential admiration. Generally, the Lord is worshipped by the devotee in a reverential attitude, but the Lord meticulously the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. The Lord's pastime is the original abode of Gauloka Vrindavan are exchanged in the spirit. Abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna considered him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The parent more cheerfully than the pray. Sorry, I lost it. Presence of the Lord. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. The Lord accepts the chastisement of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Similarly, similarly, he accepts the reproach of his fiancée more palatably than the Vedic hymns. When the Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realms of the Golok Vrindavana as an effect as an attraction for the people in general. He displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda, her foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the stocked butter of the mother Yashoda by breaking the pots and disturbing the content of his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavana, who took who took punishment for her Advantage. transcendental who took advantage of the Lord's um, manifest. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of the punishment for her transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as he generally as he is done generally done in the ordinary as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child. And tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. The picture of the Lord is adored by the Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared. He is feared often by fear. He is feared often by fear personified. Yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the Lord as a child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord Himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget the situation because the Lord wanted to make the complete gesture of a childishness. Before the before the affectionate Yashoda, I didn't read it properly. No, that's okay. This exchange of the love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental material love. That's Indirectly, Mother Yashoda is Am I right? Yeah, indirectly, but Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord
as her bewildered child. Beloved. Thank you so much for the opportunity to read this because I absolutely love Damodar Katha. Yeah, it is. So it's actually the same thing which Satyavrat Muni has written in Damodar Ashtakam. So he might have taken an idea from Kunti Maharani prayer, I believe, because Kunti Maharani, I think it was there before he wrote it. I don't know. So someone took the idea from the other, of course. So yeah, it's amazing, right? So why Kunti Maharani is bewildered by this, right? It's because she knew, she saw Krishna is so powerful. उन्होंने महाभारत में 18 दिन उनको लड़ते हुए देखा है, ना लड़ते हुए भी लड़ते हुए देखा है। जी। वो एक दिन तो जब उन्होंने भीष्म पितामह को उठा के वो उसका वो व्हील निकाल के मारते हुए देखा, राइट? सो और जब वो खुद उतरे और वो रथ पूरा ब्लास्ट हो गया after 18 days. So she knew who Krishna is. That is why she is bewildered. देखो, जो लोग नहीं जानते कृष्णा को, वो लोग उससे bewilder होते हैं कि हाउ कृष्णा डिड इट, राइट? कि हाउ कृष्णा ने कैसे गोवर्धन को उठा लिया, या उन्होंने उनके क्या बोलते हैं, सुपर ह्यूमन टाइप पास टाइम से bewilder होते हैं। पर जो लोग डिवोटीज हैं, वो ह्यूमन लाइक पास टाइम से विविल्डर हो रहे हैं कि कृष्णा कैसे रो सकते हैं, फियर पर्सोनिफाइड डरता है उनसे, और वो रो रहे हैं अपनी माँ से डर के। अब उस वो और डीप जा रही है एक्चुअली कुंती महारानी। हमें लग रहा है ये लीला है, लीला है, इट इज लीला, बट द पॉइंट व्हाट कुंती महारानी इज सेइंग हियर इज कि अब देखो, इस एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक बंदा है, रियल लाइफ में ही इज वेरी पावरफुल, राइट? फिजिकली ही इज वेरी स्ट्रांग, और वो एक प्ले में पार्ट करता है, एक प्ले में होता है वो, और उस प्ले में ही इज एक्टिंग अ वेरी फ्रेजाइल, वेरी वीक, वेरी मीक, राइट? सो वी अंडरस्टैंड, ओके, ही इज एक्टिंग, दैट्स हिज रोल, राइट? सो we get that part, but here Krishna is not acting. The point here is Krishna is not acting. दैट इज रियल, वो रियल आंसू हैं कृष्णा के, वो रियल में डर रहे हैं। सो दिस पार्ट इज बिविल्डरिंग। वो मजाक नहीं कर रहे हैं श्री यशोदा माता के, हाँ मैं ड्रामा करता हूँ उनके आगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज रियली एक्चुअली ही इज अफ्रेड ऑफ कृष्णा, एक्चुअली ही इज गेटिंग कंट्रोल्ड। तो इट्स ऑल रियल। सो हु मेड इट रियल? योग माया। योग माया मेड कृष्णा फॉरगेट हिज क्या बोल सकते हैं उसको, मेड फॉरगेट हिम दैट ही इज गॉड। तो वो कंप्लीटली भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और वो टू प्ले दैट पार्ट सो वेल ही हैज टू। एंड अदरवाइज वो वही बोल रहे हैं ना कि प्रभुपाद भी इसमें बोल रहे हैं कि अगर डिवोटीज को वो मजा ही नहीं आएगा। The Supreme Lord accepts the loving service more religiously when the service is rendered spontaneously out of pure affection, right? Without anything of reverential admiration. तो वो कोई एडमायर करने वाले नहीं चाहिए, उनको पुरुष सुक्तम उनको नहीं पसंद जितना उनको चेस्टाइजमेंट पसंद है, isn't it? ये बोला ना। सिमिलरली ही एक्सेप्ट द रिप्रोचेस ऑफ हिज फियांसेस मोर पैलेटेबली देन वेदिक hymns। जो कितने सारे ऋषि पुरुष सुक्तम आता है एक पूरा, उसमें कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन हो रही होती है, वो कृष्णा को वो इतना पसंद नहीं आता। वो ज्यादा पसंद पसंद आता है जब ललिता विशाखा उनको बोल रही होती है, यू ब्लैक मैन गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, ए यू कैरेक्टरलेस फेलो यू गो फ्रॉम हियर, राइट? So that he likes more as compared to Purushottam, which we sing, right? Which all those rishis and all those um sages do that, right? So this is what Kunti Maharani is saying is more bewildering. So this is all the details के वो कैसे गोपियों के पास गोपियों के जाके उनके घर पे माखन चोरी करते हैं, और this all stuff we know, right? So I'm not repeating that, although it is very I mean we should do that, but yeah. So basically, I think, yeah. So although he is Sarvagya,
but he's acting as if, not acting, I would say, he's made to act under the Yog Maya, so that his acting becomes naturally. है तो acting ही, but that's not actually acting, if you know what I mean. So it's again bewildering. The whole thing is bewildering. So my words could be bewildering as well. So yeah. um, yeah. हाँ, इसमें एक और बड़ा अच्छा पॉइंट था कि ऑल्दो, इवन दो वो इस पोजीशन में भी होते हैं, बट स्टिल he doesn't forget his his original position. For example, although it looks like कि Krishna is under the influence of Maya, that is why he's doing all those things, but he's not under the influence of Mahamaya. He's under the influence of Yog Maya, which is his own energy again, and he asked Yog Maya to do that so that he can perform better, or so that the devotees also can't uh, uh, what do you want to say, so that devotees also can't have that reverential admiration for him, right? वो भी उनको अपने से नीचा ही समझे, ये था ना उसमें परपोर्ट में कि वो उनको था कहीं पे, एनी हाउ। तो हाँ, सबॉर्डिनेशन यहाँ पर था ना, कहाँ गया वर्ड अभी, हाँ। he displayed a unique picture of subordination before his foster mother यशोदा, तो वो सबॉर्डिनेट बनना पसंद करते हैं, राइट, करेक्ट। और इसमें क्या बोल रहे थे वो हाँ, अब वरा, अगेन कमिंग बैक टू दैट वरा एग्जांपल, अब जब वरा अवतार हुआ तो उन्होंने, ही एक्टेड लाइक अ पिग, राइट, लाइक अ हॉग, एंड ही डिड ऑल दोस पास्ट टाइम्स, ही took out earth on his tusk and everything, but the same thing happened to Indra as well. Indra को भी, because of some curse, he also had to take birth as a hog. एंड जब ब्रह्मा उसको लेने आए कि भाई तेरा टाइम खत्म हो गया, आजा वापस चले, तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे यहाँ पर पिगलेट्स हैं, मेरी वाइफ पिग है, मैं उनके साथ, अभी मेरे को तो बहुत कुछ करना है यहाँ पे। सो ही वॉज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, whereas Krishna was not. He was not saying, I want to stay here. So that was a totally different platform. So even though he comes as a child, but sometimes वो बोलते थे गोपियों को, गोपियां बोलती थी तुम हमारा माखन चुरा लेते हो, तुम ये वो बीच में बोलते थे, ए तुम्हारा माखन नहीं है ये, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, दिस होल क्रिएशन बिलोंग्स टू मी, समटाइम्स ही यूज्ड टू से दैट टू गोपीज एज वेल, राइट? So he remembers everything, but still he was like acting so well under the influence of Yog Maya that it looked real, and it was real as well. So that this exchange of love between mother and son was like relished actually. Otherwise, अगर यशोदा माँ को पता हो कि हाँ भाई ये तो भगवान है, ये थोड़ी देर के लिए आया है मेरे से एक्टिंग करने, और फिर चला जाएगा, क्या वो मजा आएगा उनको? नहीं आएगा। जब तक वो रियल नहीं लगेगा तब तक वो मजा नहीं आएगा, right? So this whole thing is why it is so real, that is bewildering for Kunti Maharani. Does that make sense? We'll stop here and we'll see if someone has any corrections, questions, comments. Yeah. All right then, we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, Jay. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna, She was Prabhuji. listening throughout the class. She was listening, Prabhuji. हमें तो इससे Thank पहले, you for the beautiful class. yeah, thank you, हरे Hare कृष्णा। Krishna.